Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. So let us start then this lecture. So we will discuss algebraic lattices. Okay, algebraic lattices. Algebraic lattices and closure operators. Closure operators. So we will first first we give a definition. ये म्यूट कर दीजिए भाई, ये किसकी आवाज आ रही है? हाँ, प्लीज म्यूट इट. So we start with the definition. So we start with the definition. So let L be a lattice. Let L be a lattice. Okay. So an element A in L, A in L is compact. Is compact if whenever join A exists, join A exists and A is less than or equal to join A for a subset of L, then this A is less than or equal to join B for some finite, for some finite B, for some finite
for some finite B subset of A. Okay, ठीक है। जैसे आपके पास टपोलॉजी में आप डिफाइन करते हैं ना कॉम्पैक्ट सेट, तो कॉम्पैक्ट सेट डिफाइन करते हैं कि इसकी हर कोई ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग होती है, उसी सेंस में है ये। बिकॉज बाय ओपन कवरिंग हेयर वी मीन द जॉइन। जैसे ओपन कवरिंग क्या होती है वो आपको पता है। सो यहाँ भी उसी सेंस में हम डिफाइन कर रहे हैं, बाय ओपन कवरिंग ऑफ ए आई मीन द जॉइन ऑफ ए। So it has a finite subcovering means you have a finite subset B of A such that A is also less than or equal to join B. So it is defined in that topological sense. So L is compactly generated. L is compactly generated if and only if every element in L, every element in L is a supremum of compact elements. Is a supremum of compact elements. Compact elements. Every element of L is a supremum of compact elements. So we say that L is finitely generated. Sorry, compactly generated. So a lattice L is said to be algebraic. A lattice L is said to be algebraic. It is said to be algebraic if it is complete and compactly generated. If it is complete and compactly generated. Compactly, ठीक है। किसी लेटिस को आप कहेंगे ये अल्जेब्राइक लेटिस है अगर ये वो कंप्लीट होगा, मींस मीट और जॉइन एग्जिस्ट करेंगे, और कंपैक्टली जनरेटेड होगा। कंपैक्टली जनरेटेड मींस एवरी एलिमेंट इज ए सुप्रीमम ऑफ compact elements. Now we will discuss few examples. So examples of algebraic lattices. Examples. So the lattice of subsets of a set is an algebraic lattice. The lattice of subsets of a set is algebraic lattice. Algebraic lattice, ये किसी भी सेट का अगर आप सेट ऑफ सबसेट्स ले लेंगे तो जो लेटिस है वो algebraic लेटिस है। क्यों है? As if A is any set and say SUA be the set of all subsets of A, all subsets of A, तो हमें पता है SU जो है वो कंप्लीट लेटिस है with respect to the ordering of inclusion. Then this SUA is a complete lattice with ordering, क्या है ordering?
with ordering of inclusion, with inclusion as its ordering, with this containment as a partial order, partial ऑर्डर। और कंप्लीट के लिए यहाँ मीट और जॉइन क्या है? मीट एक्चुअली है इंटरसेक्शन और जॉइन है यूनियन। एंड इट इज ऑल्सो कंप्लीट, सो इट हैज कंप्लीट, तो मैं इसको क्या ही रहा हूँ, सो SUA is a complete lattice with this as a partial order as partial order because if AI I in I are subsets of A, this is say X, it is a family of subsets of A, then meet X is equal to intersection of I in I AI, ये हमें पता है, and join X is union I in I AI, ये भी हमें पता है कि ये इसका मीट होता है और ये जॉइन होता है। अब हमें अलजेब्राइक लेटिस के लिए इसको पहले तो कंप्लीट होना चाहिए था, वो ये है। दूसरा ये होना चाहिए था कंपैक्टली जनरेटेड। कंपैक्टली जनरेटेड मीन्स व्हाट? तो इसके कंपैक्ट एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले हमें देखना है इसके कंपैक्ट एलिमेंट्स क्या होंगे। द कंपैक्ट एलिमेंट्स हियर आर फाइनाइट सबसेट्स। द कंपैक्ट एलिमेंट्स here are the finite subsets of A, are the finite सबसेट्स ऑफ ए के जो फाइनाइट सबसेट्स होंगे वही इसके कॉम्पैक्ट एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कॉम्पैक्ट की ये है कि अगर किसी एलिमेंट को आप कॉम्पैक्ट कहते हैं अगर वो किसी सेट के जॉइन के साथ रिलेटेड है, तो कोई फाइनाइट सबसेट मिलना चाहिए उस सेट का, ताकि वो उसके जॉइन फाइनाइट सबसेट के जॉइन के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, तो अगर आपका इफ if A is a finite subset of A and A is contained in, यहाँ join क्या है? Union. A is contained in A is contained in union I in I AI. Okay. Then where AI are sets, then A is contained in union BI I in I, where BI they are finite, where BI they are finite subsets of AI, where each BI is a finite सबसेट ऑफ AI। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ये यूनियन में है तो ये किसी AI में होगा, अगर यूनियन में है तो किसी AI में होगा, है ना, ए सबसेट होगा किसी AI का। अगर अगर AI खुद फाइनाइट है देन इट इज ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कोई AI का कोई फाइनाइट सबसेट चूज कर सकते हो, BI, है ना। तो आप AI का ऐसा फाइनाइट सबसेट चूज कर सकते हो, BI, सच दैट A इज कंटेन्ड इन BI, such that A is contained in BI। ठीक है,
इज इट क्लियर और नॉट? तो फाइनाइट सेट्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट एलिमेंट्स होंगे। अब ये कॉम्पैक्टली जनरेटेड है इसलिए कि इसका हर कोई एलिमेंट, सो इट इज कॉम्पैक्टली जनरेटेड, इट इज compactly generated as every subset of A, every subset of A is a supremum of compact elements of A, is a supremum of compact elements, supremum of compact elements। यहाँ एक्चुअली नोटेशन मैंने ए नहीं मुझे यूज़ करना चाहिए था, यहाँ कुछ मैं कुछ एक्स यूज़ करूँगा क्योंकि ए तो मेरा बड़ा सेट है ये वाला। सो कुछ एक्स यहाँ लिख लो आप, एक्स एक्स एक्स, ओके, एक्स। So it is compactly generated as every subset of A is a supremum of compact elements of A, compact elements of A, that is finite subsets of A। तो हर कोई एलिमेंट जो है वो सुप्रीमम होगा फाइनाइट सबसेट्स का, फाइनाइट सबसेट्स ऑफ ए, होगा नहीं? क्योंकि अगर आपका कोई भी आपने लिया एक्स, ठीक है, तो ये सुप्रीमम है कंपैक्ट फाइनाइट सबसेट्स का मतलब क्या हो गया? एक्स होना चाहिए यूनियन ऑफ आई इन आई ए आई, वेयर ए आई और फाइनाइट सबसेट्स ऑफ ए। तो ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपके पास सारे सबसेट्स हैं ए के सारे सबसेट्स हैं। तो आप कुछ ऐसे सेट्स चूज कर सकते हैं ए आई साइड दैट एक्स, ऐसे फाइनाइट ए आई आप चूज कर सकते हैं साइड दैट एक्स इज यूनियन आई इन आई ए आई, okay, so every element of A is a supremum of compact elements of A, so therefore this lattice is algebraic, so the lattice of subsets of a set is algebraic lattice। clear? इसी तरह आपके पास एग्जांपल दूसरी आप ले सकते हैं, the lattice of subgroups of a group is algebraic lattice, the lattice of subgroups of a group is algebraic lattice। ये भी algebraic lattice है, ये भी कंप्लीट है, आपको पता है दिस इज ए कंप्लीट लेटिस, है ना? सो इसको मैं अगर एस जी से डिनोट करता हूँ, लेट एस जी डिनोट द लेटिस ऑफ सब ग्रुप्स, लेटिस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी। तो यहाँ आपको पता है मीट और जॉइन क्या होता है? वी नो दैट if
you have Hi, I in I, be an index, be a family of subgroups of G, be a family of subgroups of a group G, then इनका मीट क्या होगा, इनकी इंटरसेक्शन, मीट I in I Hi is equal to intersection I in I Hi, and join I in I Hi equal to what है? आर यू लिसनिंग भैया आप, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो जॉइन क्या होगा मुझे बता दो ज़रा, व्हाट वुड बी द जॉइन? जॉइन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ऑर्डर क्या है, यहाँ ऑर्डर कंटेनमेंट है ना, यहाँ एच जी पे जो हम पार्शियल ऑर्डरिंग ले रहे हैं वो कंटेनमेंट ले रहे हैं, तो जॉइन वही होगा जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा जी का, जो कि इन तमाम ग्रुप्स एच आई को कंटेन करता होगा, है ना, द स्मॉलेस्ट, वही होना चाहिए ना, क्योंकि वो लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब पहले तो इन सब को कंटेन करना चाहिए, उसके बाद स्मॉलेस्ट होना चाहिए जो इनको कंटेन करे बाय डेफिनेशन। सो join of these is equal to the smallest subgroup of G containing all of HI। तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जो कंटेन करता है किसी सेट को, उस सब ग्रुप से, उस सेट से आप जनरेट करते हैं ना, द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ए सेट इज एक्चुअली द सब ग्रुप जनरेटेड बाय दैट सेट। तो ये एक्चुअली ये होगा सो जॉइन आई इन आई एच आई बेसिकली होगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय यूनियन आई इन आई एच आई, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इट यही है स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग, it is actually the smallest subgroup containing each of these HI, smallest subgroup of G, smallest subgroup of G containing each HI, containing each HI। तो ये इसका मीट होगा, ये ज्वाइन होगा, तो ये लेटिस कंप्लीट हो गया है ना, सो एस जी इज कंप्लीट लेटिस, एस जी इज ए कंप्लीट लेटिस, एस जी इज ए कंप्लीट लेटिस, ठीक है। अब आपको दिखाना है ये जो है ये कम्पैक्टली जनरेटेड है, पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि इसके कम्पैक्ट एलिमेंट्स क्या है, इस लेटिस के कम्पैक्ट एलिमेंट्स क्या है। सो कम्पैक्ट एलिमेंट्स ऑफ एच जी, दिस एस जी, compact elements of SG or the finitely generated subgroups of G, or the finitely generated subgroups G के जो finitely generated subgroup होंगे, finitely generated means what, आपको पता होना चाहिए, subgroup H of G is said to be finitely generated
if H is generated by X for some finite subset X of G, for some finite subset X of G। तो फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप्स जो होंगे वो कम्पैक्ट एलिमेंट्स होंगे, और कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्सली अगर कोई भी कम्पैक्ट एलिमेंट होगा बेसिकली वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा। ठीक है, तो पहले मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोई फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप जो है वो कम्पैक्ट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कम्पैक्ट एलिमेंट की डेफिनेशन तो आपको पता है। तो नाउ इफ you have a set A equal to say HI, I in I, it is a subset of SG, है ना। ठीक, तो कंपैक्ट मीन्स व्हाट? कंपैक्ट मीन्स कि अगर A कंटेंड है इस A के सुप्रीमम में, मीन्स इफ A कंटेंड है, इफ सॉरी दिस H नॉट A, कंपैक्ट ये कब हो जाएगा? लेट H contained in join A, join A is actually the union of these HIs. Join A is the subgroup generated by the union, which is actually the subgroup generated by union of these HIs, I in I। ठीक है, तो होना चाहिए H, होना चाहिए H, यहाँ लेस देन मैं कहूँगा, H लेस देन होना चाहिए join B, where B is a finite subset of A, where B is a finite subset of A, तो ये मुझे होना चाहिए है, तब मैं कहूँगा ये कम्पैक्ट है। तो हमारे पास अब ये है H is contained in union I in I HI। H लेकिन आपका ये है सब ग्रुप जनरेटेड बाय X, वेयर X इज ए फाइनाइट सेट, वेयर X इज ए फाइनाइट सेट। यहाँ X क्या है? X इज ए, क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है, X इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ G। तो ये दोनों सब ग्रुप, एक सब ग्रुप X से जनरेट हो रहा है, एक सब ग्रुप इस यूनियन से जनरेट हो रहा है, और दोनों सब ग्रुप्स बराबर हैं। नहीं, ये X वाला इसमें कंटेंट है, इसका मतलब ये जो X है ये एक्चुअली सबसेट है फिर इस यूनियन का। X इज ए सबसेट ऑफ यूनियन I इन I HI। ठीक है, ठीक, एंड X इज फाइनाइट, and X is finite, and X is finite। तो मैं मानता हूँ लेट X में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो लेट X इज से X1 X2 सो ऑन Xn। ठीक है, तो अब आप ले लो B ऐसा, आप ले सकते हो सेट जिसमें होंगे साइक्लिक सब ग्रुप्स जनरेटेड बाय दीज X1 X2 सो ऑन Xn। साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय X1, cyclic subgroup generated by X2 so on cyclic subgroup generated by Xn। ठीक है, where Xi is a cyclic subgroup generated by Xi, generated by Xi। ठीक है, तो B क्या है? B तो फाइनाइट सबसेट है फिर A का,
क्योंकि बी में फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं। बी इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ ए, है ना। ए हमने ये लिया था, ए हमारा था यूनियन, ए हमारा था ये फैमिली ऑफ दिस सब ग्रुप्स एच आई। नाउ बी इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। नाउ बी सबसेट ऑफ ए and b is finite, b is finite। और क्लियरली जो आपका h है, h is contained in join of b and h is less than or equal to join of b। Okay, so this means you have any finitely generated subgroup is a compact element of SG. So thus any finitely generated subgroup of G is a compact element ऑफ एस। कन्वर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कन्वर्स अगर कोई भी आपका कंपैक्ट एलिमेंट है तो उसको तो होना ही है फाइनाइटली जनरेटेड। कन्वर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। ये मैं आपको छोड़ता हूँ एक्सरसाइज। आप बताओ कि कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप्स, दैट इज शो दैट ए compact element of SG must be a finitely generated subgroup of G, finitely generated subgroup of G। ये आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ यहाँ हर कोई एलिमेंट जो है वो हर ये लेटेस्ट जो आपका कंपैक्टली जनरेटेड है, क्योंकि हर कोई एलिमेंट जो है इट इज ए सुप्रीमम ऑफ ए लेटेस्ट अलजेब्राइक। क्या हो गया, इट इज कंप्लीट एंड कंपैक्टली जनरेटेड मींस every element is a supremum of compact elements। Now SG is compactly generated as every element of SG is a supremum of compact elements, supremum of some compact elements of G, compact elements of G, है ना। तो आप ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कोई भी सब ग्रुप ले लें, यहाँ तो एलिमेंट्स बेसिकली सब ग्रुप्स है ना, इसके जी के सब ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स। तो अगर आप के कोई यानी सब ग्रुप ऑफ जी लोगे, फॉर इफ के इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, then k is a supremum of finitely generated subgroups of G, then k is supremum means union hi, where hi are some finitely generated subgroups ऑफ जी। तो ये आप कर सकते हैं, वो तो आप के ही सब ग्रुप्स ले सकते हैं। टेक फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप्स ऑफ जी, टेक दिस एच आईज, नहीं यून इसे जनरेट करना है आपको, है ना, यूनियन नहीं लिखना, ये जनरेटेड बाय यूनियन। सो टेक
HIs as the finitely generated subgroups of G. Finitely generated subgroups. Okay. So therefore this lattice is an algebraic lattice. आपको एक एक्सरसाइज में और छोड़ूंगा. Show that every finite lattice is algebraic. Show that every finite lattice is algebraic. Every finite lattice is algebraic. ये भी देख लें आप. अब एक ऐसे लेटिस की एग्जांपल जो कि अलजेब्राइक नहीं है. सो दिस इज द फोर्थ वन. अगर आप ये ले लेंगे इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, ये लेटिस कंप्लीट है लेकिन अलजेब्राइक नहीं है. द सबसेट that is close interval 0 1 of the real line with usual order, with usual less than or equal to order, with less usual order is a complete lattice but it is not algebraic. Is a complete lattice but it is not algebraic. Not, ये लेटेस्ट algebraic नहीं है. क्यों? कंप्लीट तो है आपके पास, है ना. ये तो आपको बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से आपको मिल जाएगा इसकी कंप्लीटनेस. ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर. ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर. ठीक है ना. ये बाउंडेड अबो है ना, बाउंडेड बिलो भी है क्योंकि ये क्लोज्ड है. बाउंडेड बिलो ये 0 1 है. Bounded above, bounded below by 0, bounded above by 1. So therefore it has any subset of this has supremum and infimum. So completeness follows by order completeness property of R. But it is not algebraic because here the only compact element is 0. Here the only compact element is 0. 0 ही compact है ना. क्योंकि अगर आपके पास ए कोई सबसेट है इस इंटरवल 0 1 का, देन जॉइन ऑफ ए तो एग्जिस्ट करेगा और 0 हमेशा इसके जॉइन से छोटा होगा. इस सेट ए के जॉइन से छोटा होगा. 0 वुड बी लेस देन और इक्वल टू जॉइन ए. तो आप इस ए का कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लेंगे, 0 उसके जॉइन से भी छोटा होगा. देन 0 would be less than or equal to b, sorry, join b. 0 would be less than or equal to join b for any finite subset b of a. For any finite subset b of a, उससे 0 छोटा होगा. तो 0 तो कंपैक्ट एलिमेंट हो गया, लेकिन कोई भी एलिमेंट 0 से बड़ा जो है वो कंपैक्ट एलिमेंट नहीं होगा. नाउ लेट a इज ग्रेटर देन 0. ठीक है.